सालों से ever since the COVID pandemic started, we have become more aware about our mental health. We know that there are certain structural changes which are actually happening in our brain when we have a mental health issue. We know कि कुछ तो neurotransmitter में कम या ज़्यादा है whenever there is a mental health issue. But are we really still able to identify when someone has a mental health issue? Are we still able to find out if we ourselves are going through a mental health issue or not? Mind beyond control. कहने को मेरा है पर मेरी सुनता नहीं. So this episode is exactly to tell you how you can actually understand your own brain, your own mental health, and identify whether you have any issue going on inside yourself or whether a close person is having any issue with their mental health. This is for you to identify the mental health issue and seek treatment whenever you think there is. Hello, everyone. This is Dr. Khushbu Gadda. I'm a neurophysiotherapist and founder at Fitfully Yours. This is my podcast, Brain on the Move. Brain on the Move podcast is mainly to understand your brain and how it is correlated with different diseases, how different diseases affect your brain in a certain way. So it can be anything which is happening around you in your environment or something which has affected you on a personal level and how it impacts your brain and your brain health in a certain way. How vice versa, your brain health affects your physical health. For today's episode, I have a guest, Dr. Rohan Jain. He is a consultant psychiatrist practicing at Mohali in Chandigarh. He has done his post graduation in psychiatry from Mumbai and he was a university gold medalist. His interest mainly lies in primary preventive psychiatry, in which he wants to create awareness that as much as people know about their physical health, in a similar way, they should know about their mental health and seek treatment from a specialist whenever there is a requirement. So let's begin with this episode. I wanted to ask you, ki anything in your entire medical career, like as a student or as a professional, how many ever years, um, have you encountered anything bizarre in the entire career that you have done? Obviously, a lot of because see, I am from psychiatry, so now the definition of bizarre is no more existing for me, Hmm. for my colleagues also because जब हम घुसे थे तब bizarre exist करता था, but अब इतना कुछ ऐसा random चीजें देख लिया कि अब वो bizarre लगता नहीं. जैसे for example, I'll tell there was one case where the patient was a 13-year-old girl and Hmm. she came with the complaint that she's not able to talk, she's not able to speak at all. So Hmm. relatives, her parents are saying कि महीना भर हो गया, महीने भर से कुछ बोली ही नहीं है, स्कूल जाती है तो जाके बैठ जाती है, कुछ नहीं बोलती है एंड पूरे टाइम सिर पकड़ के रखती है एंड ऐसा बिहेव करती है कि उसको बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है. तो उन्होंने बहुत जगह, दो तीन जगह पहले ऑब्वियसली इंडिया में डॉक्टर के पास आने से पहले नजर उतरवाई जाती है, मंदिर लेके जाते हैं, ये सब करवाने के बहुत टाइम बाद, एक डेढ़ महीने बाद उसको किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया गया. न्यूरोलॉजिस्ट ने ईएनटी को दिखाया, ईएनटी ने सारे टेस्ट किए, सारे एग्जामिनेशन किए, स्कोप्स वगैरह डाल के देखा, एवरीथिंग वाज फाइन, कि ऐसा कुछ था ही नहीं कि जिसके कारण वो सोच सकते हैं कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो. हेडेक के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह दी, बट कोई कुछ खास इंप्रूवमेंट दिखता नहीं था. इनफैक्ट जब भी उसको वापस स्कूल जाने के लिए या थोड़ा सा भी डांटा जाता था तो उसको पैनिक अटैक्स जैसे आने लग जाते थे. मतलब शी विल हाइपर वेंटिलेट, वो बहुत जोर जोर से सांस लेगी एंड देन सब लोग सोचेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. एंड लेटर शी स्टार्टेड हैविंग अनकॉन्शियस स्पेल्स आल्सो. वो बेहोश हो जाएगी, गिर जाएगी, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगी. तो उनको अगेन Hmm. लगा कि क्या है इसको, कहीं मिर्गी का दौरा है, सीजर है, ऐसा कुछ है. तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट को फिर से कंसल्ट किया गया आफ्टर ईएनटी. तो न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला कि एक बार साइकेट्री में दिखाया जाए. तो जब हमारे पास वो आई चाइल्ड, तो हमने जब बात करना चालू किया तो हमको थोड़ा सा हिंट हुआ, क्योंकि यूजुअली जब सारी चीजें रूल आउट कर दी जाती है तो वी आर प्रीटी मच श्योर कि नाउ इट पॉइंट्स मोर टुवर्ड्स अ फंक्शनल डिसऑर्डर. फंक्शनल डिसऑर्डर Hmm. जहाँ पे लोग बोल देते हैं बहुत इजीली हर चीज को फंक्शनल, बट फंक्शनल का डिसऑर्डर का लिटरल मीनिंग ये है कि कोई बॉडी फंक्शन जो वो बॉडी इजीली पहले कर पा रही थी,
अब वो नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट, जो कि उसके मे बी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पे है। पेशेंट इज ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ इट। पेशेंट चाहता है कि ही और शी वांट्स टू स्पीक, बट वो बोल ही नहीं पा रहा है, इज नॉट एबल टू यूज देयर वोकल वोकल कॉर्ड्स। तो हमारे पास जब पेशेंट आई तो हमने हिस्ट्री ली डिटेल में। थोड़ा हमको हिंट हुआ कि थोड़ा सा घर पे फैमिली एटमोसफियर थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बच्ची को लेके बहुत डांट पड़ती है, घर का काम करवाया जाता है, और स्कूल में इसकी इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसके बावजूद उसको पुश किया जाता है। तो जब बच्ची को सेपरेट, मेरे सीनियर थे, आई वाज फर्स्ट ईयर देयर, तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने जब सेपरेट इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने सेपरेट इंटरव्यू में कुछ नहीं किया उन्होंने। उनको जब काफी कॉन्फिडेंस आया कि दिस इज अ फंक्शनल डिसऑर्डर, दिस इज अ कन्वर्जन डिसऑर्डर, नॉट अ लिटरल एफेजिया। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पीच इश्यू है, बिकॉज एमआरआई एंड एवरीथिंग वाज फाइन, कोई ऐसा फाइन। साइन नहीं था। तो उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने सब पेन वेन रख दिया, उन्होंने उनको बोला कि आप बोलो। तो शी वाज लाइक, वो तो वैसे ही इशारा करे कि नहीं बोल पा रही। उन्होंने कहा नहीं, आप बोलो, आप बोल सकते हो, आप स्टार्ट करो गले की खराश करने से, कफ करने से स्टार्ट करो। तो थोड़ी वॉइस वहां से जनरेट करवाई गई, एंड देन उनको बोला कि आप कोशिश करो, आप मुंह हिलाने की कोशिश करो, आएगी आवाज। तो थोड़ा सा आवाज आई तो लेकिन नहीं, हमको सुनाई नहीं दे रहा, आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा तभी हमको सुनाई देगा। तो थोड़ा फोर्सफुली पुश किया, विच इज नॉट अ राइट वे टू अप्रोच अ पेशेंट, बट उन्होंने किया ही, मतलब एक ट्रायल किया कि लेट्स सी कि कितना ब्रेक कर सकते हैं। एंड जैसे ही पेरेंट्स को दूर कर दिया गया, सब सब दूर कर दिया, सिर्फ रूम में दो डॉक्टर थे एंड वो खुद चाइल्ड थी, शी स्टार्टेड टॉकिंग, बहुत लो वॉइस में, बट शी स्टार्टेड टॉकिंग। एंड इवेंचुअली जब बात करी तो पता चला कि शी वांट्स टू टॉक बट शी इज नॉट एबल टू टॉक, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि वो बोलेगी, बात करेगी तो लोग उसको समझेंगे ही नहीं, एंड मे बी उसको पनिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रही है कि बात नहीं कर रही है। तो उस डर से द व्हेन शी स्टार्टेड नॉट टॉकिंग, इट ओवरराइड हर ओन कंट्रोल ऑफ नॉट टॉकिंग, एंड शी was mute for such a long period, and within 7 or 10 days के admission पे she was discharged again. She is not totally fine, जब तक मेरे को ध्यान है, बट she was much better, she was communicating, she was going to school, she was working at home। थोड़ा पेरेंट्स को बहुत काउंसलिंग लगा, दे बिलोंग टू अ रूरल फैमिली, तो बहुत पुअर अंडरस्टैंडिंग था, एजुकेशन बहुत बैकग्राउंड बहुत पुअर था। बट या ऐसे इस तरीके के बिजार केस जहाँ पे मतलब यू कांट इमेजिन कि क्यों नहीं बोल रही है, सब कुछ तो ठीक है, क्यों नहीं बोल रही है, एंड इस तरीके के, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ इट, ऐसे बहुत सारे रैंडम केसेस आते रहते हैं। या एंड इट्स लाइक कि एटलीस्ट आपने जो बोला कन्वर्जन डिसऑर्डर, तो मैंने एक पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में भी देखा था। She would go blind in the evening. All of a sudden, she या would not be able to see around her. हम्म, And again, we interviewed her and we found out कि उसका भी वो वही cause है कि family issues है. Her parents are, maybe giving her unnecessary pressure from some issue. And she was also a small girl, 14 या 15 years old की थी वो. And again, like she was already taking psychiatry treatment over there in the department. And along with that, they referred her to us as well because उनको लगा कि at least physiotherapy में when she comes to the pediatric center, she will start mingling with the other kids over there. She will do a few physical activities over there. So she will start opening up. She will start गेटिंग द बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो। तो वो जब हमारे सेंटर में आई तभी इनिशियली शी यूज टू नॉट टॉक मच, शी यूज टू बी विद इन हर ओन वर्ल्ड। बट स्लोली उसको पेरेंट्स से भी अलग किया, थोड़ा उसके पेरेंट्स को बाहर भेज देते थे हम ट्रीटमेंट के लिए। And then we used to play with her, just play with her. Like we used to play catch and throw with her. We used to put her on the balance board and just give her those fun activities. उसको शायद एक बार हुला हुप भी दिया था हमने खेलने के लिए। तो ये सब अलग अलग चीजें हमने उसको दी एंड स्लोली हर एपिसोड्स रिड्यूस्ड ऑल्सो ऑफ द इवनिंग ब्लाइंडनेस। तो वो भी काफी हेल्प इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें। या so that's what actually आज का topic is, मतलब that's such similarity to what two cases we discussed, कि हम्म। we can control what we see, we can have that power कि we can close our eyes to see,
but at times whatever we are seeing is not even accessible to us. Whatever we are Hmm. listening or whatever we want to talk, we have no access to it because वो कंट्रोल जो बॉडी में है वो चला जा चुका है किसी भी कारण, बहुत सारे कारणों से। Hmm. जो न्यूरल Hmm. सिस्टम हमारे बॉडी में वर्क कर रहे हैं उनमें से कहीं पे भी कुछ भी 19-20 हुआ तो देयर आर मिलियन पॉसिबिलिटीज ऑन इट। सो Hmm. we think or behave like we know ourselves, but this is just a superficial truth कि हम अपने आप को जानते हैं, we can control ourselves, but actually में there are a lot of complications in every deep line part of our brain, our body, our mind, everything. So, I was just reading about the involuntary actions today, and मुझे मतलब obviously हमको medical में भी पढ़ाया जाता है पहले पहले कि there are certain involuntary systems in our body, like breathing, our heart beating, digestion. All these are involuntary. There are certain voluntary systems also in our body, like if we are moving our hand to pick up something, that is voluntary. If we are talking Hmm. about something, then it is voluntary. If we are thinking, then again it is voluntary and sometimes involuntary also. तो मुझे अभी तक मतलब आई वाज जस्ट सर्चिंग एंड मुझे ऐसे कुछ I was not able to find anything related to the psychiatry part of it. Ki, okay, involuntary actions and how is it related to our mental health also. So many a times, even amongst us, we find that a certain situation has come in front of us. Ki, okay, this situation has come, and we are acting in a very different way than what we wouldn't have imagined. कि okay, हम ऐसे एक्ट कर रहे हैं एंड वी वुडेंट हैव इवन इमेजिन कि हम ऐसे कुछ कर पाएंगे। तो उसी उसी के बारे में पूछना था कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट इनवॉलंटरी एक्शंस वुड यू से कि जो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है, साइकाइट्री के रिलेटेड है। So everything there is ऐसा कोई इनफैक्ट कोई नॉर्मल वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है जो कि माइंड या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ना हो, बिकॉज वट एवर वी एक्ट अपॉन इज अ प्रोडक्ट ऑफ वट एवर वी आर गोइंग थ्रू। सो मैंने अगर मेरा हैंड अभी इस समय मूव किया है, सो देर इज अ थिंकिंग प्रोसेस गोइंग कि हाँ मुझे लोगों को समझाना है कि मेरी मोटर एक्टिविटी मेरे कंट्रोल में है इसलिए मैंने ये हैंड मूव किया है। अब समहाउ मेरा वो मोटिवेशन ही नहीं है, मेरा वो मूड ही नहीं है कि मुझे लोगों को समझाना है, मुझे ये एक्शन करके दिखाना है। कोई कितना भी कोशिश कर ले बट आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दैट इवन इफ आई वांट टू परफॉर्म दैट। मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ, मैं इतना मेलनकोलिक हूँ, मैं इतना बेड रिडन हूँ, मैं इतना डाउन टू अर्थ लो मूड हो गया है मेरा कि मेरे कुछ करने की ही इच्छा नहीं है। सो ऑल दोज वॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ टॉकिंग, ईटिंग, interacting with others, moving around in home, going to work, or even when given a task at home, performing that, even taking own bath, even maintaining self-care, even going to washroom, all हम्म। these have some underlying mood to it. अब वो मूड आपका जब तक नॉर्मल है तब तक वो रियलाइज नहीं होता है। जब वो मूड लो होता है देन यू फील लाइक कि नहीं अब तो बिस्तर में ही पड़े रहना है। अब हमें ये कभी कभी बहुत बहुत माइल्ड लेवल पे होता है कि हाँ किसी दिन मूड ऑफ है तो हम थोड़ा 3-4 घंटे एक्स्ट्रा सो लेते हैं। सो वो जो एनेडोनिया है, वो कुछ करने की इच्छा जो हमें नहीं हो रही है, दैट इज उसको मल्टीप्लाई कर दो 10-20 टाइम्स इन अ पेशेंट हु इज हैविंग डिप्रेशन। सो जिसका मेंटल हेल्थ इतना पुअर है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, कोई वॉलेंट्री एक्शन काम नहीं करेगा। दिस इज वॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री सॉरी इनवॉलेंट्री, अब जितना भी आप डाइजेशन बात कर लो, ये बात कर लो, देयर आर सो मेनी केसेस जिसमें वी आर थिंकिंग कि हमारे कंट्रोल में है बट सारे इन्वॉल्व एक्शन भी आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी। आप अगर किसी आपको अगर बोला है कि आज आपका एक पॉडकास्ट है, अभी अगर अगर किसी को एंजाइटी है उस पॉडकास्ट पे पहली बार वो ऐसा कुछ रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको स्वेटिंग होने लगेगी। अब दैट स्वेटिंग इज नॉट एट ऑल वॉलेंट्री। कोई नॉर्मल पर्सन चाह के भी उस स्वेटिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। बट जितनी ज्यादा एंजाइटी होगी उतनी ज्यादा स्वेटिंग होगी, उतना ज्यादा ट्रेमोलेसनेस होगा, हाथ कांपेंगे, उतनी ज्यादा हार्ट बीट बढ़ेगी। अगेन वी कांट कंट्रोल अवर हार्ट बीट बट पाल्पिटेशंस फील होगी, हाइपर वेंटिलेट, सांस फूलने लगेगी, ड्राइनेस फील होगा, थ्रोट ड्राई होगा, थोड़ा इची इची फील होगा, इवन
कुछ लोगों को तो एंजाइटी में एकदम फेंटनेस भी आ जाती है, ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाता है कि बेहोश हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस है, जो हमारे मेंटल या इमोशनल स्टेट के बाद जो हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस है, वो सारे कंट्रोल में होने के बावजूद जितने हम नॉर्मली रख सकते हैं, वो सारे हेवायर हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सिचुएशनल इमोशनल स्टेट। अब ये हम कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं, हर कोई अपनी लाइफ में कभी कभी एक्सपीरियंस करता है, बट यही चीज जब साइकेट्रिक डिसऑर्डर में पूरी दिन होने लगती है, कंटिन्यूसली होने लगती है, हर सिचुएशन में होने लगती है, या सो इफ किसी के साथ ये डेली हो रहा है, हम ये एक परफॉर्मेंस एंजाइटी जो बोली है कि एग्जाम से पहले हमें हुआ, तो ये अगर किसी को डेली हो रहा है, हर चीज के लिए हो रहा है, लोगों से मिलने के लिए हो रहा है, सोशल एंजाइटी जिसको बोलते हैं, तो वो तो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा, वो तो अपनी कोई रूटीन डेली एक्टिविटी कर ही नहीं पाएगा, तो इतना सीवियर उसको फंक्शनल इम्पेयरमेंट होगा कि विदाउट हेल्प तो उसकी लाइफ हेल है, वो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। एंड देखने वाले, बाहर देखने वाले विल बी लाइक कि क्या हो रहा है इसको, बिकॉज उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है उतना कभी परसिस्टेंटली, तो दे विल बी लाइक ये नाटक कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो इतना स्टिग्मा होता है। अभी कोई डायबिटीज के लिए कोई नहीं बोलता है, डायबिटीज के लिए कोई नहीं बोलता है ये शुगर बढ़ने का नाटक कर रहा है, कि ये मीठा नहीं खा रहा नाटक कर रहा है। अरे, तो मेंटल हेल्थ से इतना स्टिग्मा रिलेटेड है, बिकॉज आपकी बिहेवियर, आपका मूड जो है वो इन्फेक्शियस होता है। आप जो कर रहे हो लोग देख रहे हैं, आप अगर हंस रहे हो तो लोग देख के हंसते हैं, लेकिन आप अगर बहुत लो हो तो लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वो चीज। तो वो इतना स्टिग्मेटाइज हो रखा है कि इंडिविजुअल पर्सन चाहकर भी हेल्प नहीं ले सकता है, उसको लगता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग बोलेंगे कि इसको क्या है क्या। सो जब तक हमें अवेयरनेस हमारी एंड इवन सोसाइटी इन एट होल की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए हमको लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं रहेगी तो वो उतने सेंसिटिव नहीं रहेंगे उस चीज के लिए, उतना प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे लोगों को हेल्प के लिए। बिकॉज अनदर एलिमेंट इसमें जो इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है इंसाइट, कि इफ पेशेंट को इंसाइट ही नहीं है कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा। हमें पता है कि चलो मुझे आज ये पॉडकास्ट करना है तो मुझे मेरा इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा कि कैमरा कैसे सेटअप करना है, बिकॉज आई हैव दैट इनसाइट कि मुझे आज कुछ करना है तो मुझे वो सेटअप करना। बट समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम ए साइकेट्रिक इलनेस, उसको ये इंसाइट ही नहीं है कि उसको साइकेट्रिक इलनेस है, तो वो हेल्प कैसे लेगा। विदाउट दैट इनसाइट कुछ नहीं कर सकता। सो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं। डिप्रेशन अगेन लेस लाइकली कि जिसमें इंसाइट पुअर हो, बट सीवियर डिप्रेशन जितना सीवियर हो जाता है उतनी इंसाइट पुअर हो जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ डिसऑर्डर जिसमें इंसाइट मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि इंसाइट पूरी खत्म हो जाती है। तो जिसको इंसाइट ही नहीं है वो तो अग्री करेगा ही नहीं कि उसको कुछ इलनेस है, तो दूसरे लोग चाह भी रहे होंगे हेल्प करना तो भी नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में बहुत ज्यादा दूसरे लोगों का रोल आ जाता है। सिर्फ अगर वो अकेला होगा, कोई उसका सपोर्ट नहीं होगा, तो वो कहाँ से ट्रीटमेंट लेने जाएगा। उसको तो लगता है वो ठीक है, वो तो अपनी एक अलग वर्ल्ड में जी रहा है, अपनी अलग एक लाइफ जी रहा है, जैसे भी अब बिहेव कर रहा है वो उसके हिसाब से कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि उसकी इनसाइट पूरी पुअर है। इसलिए आपने देखे होंगे रोड साइड बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट ड्वेलर्स होते हैं जो कि बहुत पुअरली ग्रूम्ड होते हैं, बहुत डिशेवल्ड स्टेट में होते हैं। लोग उनको देख के इग्नोर कर देते हैं, बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, बहुत डर्टी तरीके से रह रहे हैं। बट यू नेवर नो कि वो कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो या कोई सेलिब्रिटी हो, यू नेवर नो कि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट स्किज़ोफ्रेनिया ही is not been able to know have insight about his illness, and he's just roaming around trying to figure out what's happening. What you said about the different anxiety, depression, these are two things. Again, schizophrenia is another thing जिसमें you can see very clearly कि okay, this person is having so and so things. But what about the other kind of disorders also? Like if you say mania, even mania, people are working like even for manic disorders, people are वेरी एनर्जेटिक और उनको लगता है कि हम विल अचीव एवरीथिंग इन जस्ट वन डे. सो अगेन दैट इज ऑल्सो अनदर सिम्टम बोल So सकते हैं कि mania ka I will give you a intro into what bipolar feels like. So bipolar is something where there are two poles of one individual. So usually bipolar में एक पोल डिप्रेशन होता है, एक पोल मेनिया होता है, बट देर इज नो नेसेसिटी के
डिप्रेशन हो ही, अगर सिर्फ किसी को मेनिया भी है देन आल्सो इट विल बी बाइपोलर, बिकॉज नॉर्मल मूड इज आल्सो कंसिडर्ड अ पोल, बिकॉज मेनिया इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि उसको एक अलग सेपरेट पोल कंसिडर किया जाता है। अब समझने की चीज ये है कि जो इंडिविजुअल अपनी लाइफ एक नॉर्मल मूड में या फिर डिप्रेस्ड मूड में जी रहा है, जब वो मेनिया स्टेट में जाता है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, बहुत सारे न्यूरोबायोलॉजी और स्ट्रेसर्स और जेनेटिक्स इन्वॉल्व है इस चीज में, बट जब वो मेनिया स्टेट में जाता है, व्हेन आई यूज मेनिया स्टेट, आई मीन टू से उसका जो मूड है बहुत एलिवेटेड हो जाता है, एनर्जी बहुत एलिवेट हो जाती है, उसको खुद के एस्टीम जो है बहुत हाई लगती है, ही थिंक्स बिग ऑफ हिमसेल्फ, उसको लगता है कि ही इज एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन बी, उसमें इतनी पावर्स है, इसमें स्पेशल कुछ एबिलिटीज है। अब जो इंसान डिप्रेस्ड और नॉर्मल मूड में जिंदगी भर रहा है, जैसे ही उसको वो फील आती है, वो एक्सपीरियंस आता है, सो व्हाई वुड यू वांट टू गो बैक टू दैट सैड लाइफ, द नॉर्मल डिप्रेस्ड लाइफ? ही विल नॉट। सो वो मीनिया के पेशेंट्स में इंसाइट बहुत पुअर होती है, सबकॉन्शियसली ही पुअर हो जाती है, कि वो चाहकर भी, उनको कोई बोलेगा भी तेरे को ट्रीटमेंट चाहिए, अरे तू, वो बोला क्यों ट्रीटमेंट, अरे भाई मेरे से अच्छा तो कोई आदमी नहीं है, आप क्या मेरे को ट्रीटमेंट लेने की बात करो, आप जलते हो मुझसे, वो सीधा यही बोलता है कि आप मेरी खुशी से जलते हो, आप मेरी एनर्जी से जलते हो, कि आप देख ही नहीं सकते कि मैं इतना बड़ा आदमी बन रहा हूँ, इसलिए आप चाहते हो कि मैं ट्रीटमेंट ले लूं। सो वो ट्रीटमेंट देते भी है उनको, तो भी वी हैव टू सुपरवाइज देयर मेडिकेशन, बिकॉज दे विल नॉट टेक, दे आर वेरी हैप्पी इन देयर mania life, their mania style of living, and eventually these all are episodic illness. See, schizophrenia can be continuous and episodic, but mania is usually episodic, so if not treated, it lasts for about 3 to 6 months usually. So ऐसा नहीं है कि कोई किसी को बाइपोलर है तो उसको मेनिया लाइफ टाइम चलता रहेगा, it comes in phases, it comes in episodes, and with every untreated episode it comes more sooner. So अगर आपने 3 to 6 months में ट्रीट नहीं किया है, so next time जब वो next episode आएगा तो वो और जल्दी आएगा and can be much more severe, and because it's a high risk situation, because individual is फुल्ली एनर्जाइज, तो वो बहुत सारे एक्सीडेंटल बिहेवियर्स करता है, जैसे बहुत तेज से बाइक चलाएगा, इधर उधर एक्सीडेंट कर देगा, लोगों से झगड़ के आ जाएगा, बहुत खर्चा कर देता है, इतना जितना उसके पास पैसा नहीं है उससे ज्यादा वो लोन लेके खर्चा कर। देयर वाज अ पेशेंट, वो 35,000 ऐसी कुछ की मसाजर चेयर घर में ले आया, और उसकी उसकी खुद की जो मंथली इनकम है वो 10,000 की है। अब उसके पास उतना सेविंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोन पे मसाजर चेयर लेके आ गया, बस कि उसको चाहिए। सो इस तरीके की स्पेंडिंग स्प्रीज, एक बंदा था वो सब डोनेट, वो जा जाके सबको पैसे बांटता था, या फिर गिफ्ट्स देता था, या फिर खाना खिलाता था। सो इस तरीके के बिहेवियर्स और इस तरीके की थिंकिंग बन जाती है, जो दूसरे लोगों के लिए बहुत फनी हो जाती है, बट जस्ट फैमिली उस सफरिंग, बहुत कभी भी कुछ भी हो सकता है इन दैट पर्टिकुलर मूड सेट, इसलिए ट्रीटमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, इफ इवन इफ इट्स सेल्फ लिमिटिंग, बट ट्रीटमेंट उस पीरियड के लिए बहुत जल्दी हो जाता है फॉर दीज रीजंस। एंड अनदर थिंग इज कि अगेन वो उस टाइम के लिए बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, लाइक वो या किसी अगर कोई जॉब कर रहे होंगे तो दे आर एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव इन दैट पर्टिकुलर Oh no टाइम no. ऑफ द। So it's not always कि वो extremely productive होंगे. It's two way. कई कबार extremely productive होंगे no doubt. But क्योंकि सिर्फ एनर्जी होना is not everything. कई बार हे वायर होगा प्रोडक्टिविटी और हैम्पर कर देंगे, वो जा जाके दूसरे के काम में टांग अड़ाएंगे कि ओके। मेरा हो गया तेरा भी करूंगा मैं, और उसमें क्योंकि उनको आता नहीं, लेकिन क्योंकि उनको लगता है कि उनको आता है तो वो उसमें भी घुस जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर फास्ट बॉलर बहुत फास्ट फेंकता है तो विकेट्स लेता ही लेता है, वो जितना ज्यादा फास्ट फेंकेगा उतना बैट्समैन टच करेगा तो वो चौका छक्का भी जाएगा। सो इट्स नॉट कि सिर्फ प्रोडक्ट एनर्जी आना ही प्रोडक्टिविटी है। सो ओके। yeah, it's two way thing. Even in fact hypomania is the disorder which leads to more productivity because hypomania is lesser than mania but still higher than normal mood. तो उतना उतना ज्यादा haywire नहीं हुआ है, so individual have still have some sense of responsibility, तो थोड़ा उस तरीके से करते हैं। तो बहुत सारे इनफैक्ट बहुत सारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स है जो कि अपने लाइफ में कभी ना कभी हाइपोमेनिया फेस एक्सपीरियंस करते हैं। सो इवन हम कभी बहुत खुश हो जाते हैं तो वो जो हमें थोड़ा सा फीलिंग जो आता है वो एलिवेशन की, दिस इज दैट कैन बी अ साइन ऑफ हाइपोमेनिया। हमने ऐसे भी नॉर्मल पेशेंट्स देखे हैं जो कि जिनको बाइपोलर नहीं है बट सडनली वो कुछ दिन के लिए लगातार इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि नॉर्मल से थोड़ी बियॉन्ड है।
बट अगेन हम्म। मेनिया नहीं है तो उतना सीवियर नहीं है, तो कि लोगों के नजर में भी नहीं आता, बाईपास भी हो जाती है। बट दोज पीपल हैव मोर प्रोपेंसिटी टू इन फ्यूचर लैंड अप इन मेनिया, बिकॉज क्योंकि वो शिफ्ट होने का चांस थ्रेशोल्ड उनमें लो है, वो जल्दी शिफ्ट हो सकता है। सो उन केसेस में ज्यादा ध्यान रखना। इनफैक्ट जो मेनिया का रिस्क फैक्टर है, बाइपोलर का रिस्क फैक्टर है, साइक्लोथाइमिक टेम्परामेंट बोलते हैं। सो साइक्लोथाइमिक टेम्परामेंट मतलब क्या, ऐसे लोग जिनका जो टेम्परामेंट है, जो मूड है, वो बहुत जल्दी अप एंड डाउन होता है। हम्म। सो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बहुत जल्दी खुश होते हैं और बहुत जल्दी उदास भी होते हैं, और उनकी इंटेंसिटी भी खुशी की बहुत ज्यादा होती है और उदासी की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। सो ऐसा जिनका टेम्परामेंट होता है वो साइक्लोथाइमिक बोलते हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज अ बेस लाइन टेम्परामेंट ऑफ दैट पर्सन, यू कांट चेंज दैट, यू कांट मॉडिफाई दैट। वो जेनेटिकली और जो उनकी ग्रोथ हुई है, एनवायरमेंटली वो जो बड़े हुए हैं, वो वैसा ही बन गया है। सो आप उसको ठीक नहीं कर हम्म। सकते हो। बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन बी मोर अवेयर कि इनको ज्यादा रिस्क है उस बाइपोलर में लैंड अप होने की। तो ऐसी कुछ हिस्ट्री रहती है तो हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि बाइपोलर में लैंड ना हो। इनफैक्ट काउंसलिंग भी करते हैं रिलेटिव्स को कि हाँ, यू हैव टू बी अवेयर। कई बार पेशेंट्स भी आते हैं कि मेरे को बहुत जल्दी रोना आता है, मेरे को बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास भी हो जाता है, मैं बहुत जल्दी खुशी खुशी में चीजें कर लेती हूँ, खुशी खुशी में पैसे शेयर मार्केट में डाल देती हूँ, इस तरीके के रिस्की बिहेवियर्स करती हूँ। तो वो पर्सनालिटी इश्यूज है या पर्सनालिटी ट्रेट्स है, नॉट इश्यूज, ट्रेट्स। एवरीवन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स। कोई बहुत ज्यादा शांत रहता है, कोई बहुत ज्यादा अपने में लगा हुआ रहता है, बहुत किसी से बात नहीं करेगा, खुद की लाइफ एक इंट्रोवर्ट के जैसे जिएगा। और बहुत कुछ लोग आउट गोइंग होते हैं, सबको जा जाके अपने शेयर करते हैं, चीजें बताते हैं। सो जो देखने वाले लोग हैं वो जज करते बैठते हैं कि क्या है, किसी से बात नहीं करना। बट दिस इज समथिंग विच इज देयर पर्सनैलिटी। सो ऑल हम्म। पर्सनैलिटीज हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। जो एक्सट्रोवर्ट वाले हैं, दे हैव दैट प्रो कि कुछ होता है तो वो शेयर कर देते हैं, तो उनको जल्दी हेल्प भी मिल जाती है। बट उसका नुकसान भी है, पीपल कैन जज, पीपल कैन मेक ओपिनियंस अबाउट देम। एंड ऑल्सो कई बार ज्यादा जब वो एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल दूसरे लोगों से जल्दी आउटगोइंग होता है, तो लोगों को गलत सिग्नल भी पहुंचता है, गलत मिक्स मैसेज भी मिलता है कि नहीं, सो फ्रेंडली, ये तो सबसे दोस्ती यारी कर, चलो ये तो मेरा भी फ्रेंड बन जाएगा, या मैं इसको जो बोलूंगा वो कर लेगा, मेरी सुन लेगा। तो कई बार लोग उस तरीके से जज करके मिसयूज भी करते हैं। इंट्रोवर्ट वाले क्योंकि अपने शेल में रहते हैं, सो उनको बेनिफिट आउटर वर्ल्ड से रहता है, क्योंकि वो ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है दूसरे लोगों पे। बिकॉज जो इंट्रोवर्ट है वो खुद से सेल्फ बहुत खुश है, तो वो ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर कोई नहीं भी रहा उसकी लाइफ में, देन ऑल्सो ही इज वेरी हैप्पी। इसका फायदा ये हुआ, बट इसका नुकसान ये हुआ कि एट सम टाइम इन देयर लाइफ इफ दे want to talk to someone, they will find it difficult because they have not done that so frequently in their life. So whatever personality traits any individual have, they have to be aware of it. If they are aware of it, if their family members are aware of it, then they will be able to take a specific dedicated care for them। कि मैं, मेरे को पता है कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं आउटगोइंग हूँ, तो मैं अपना केयर उस तरीके से कर सकूंगा कि मैं थोड़ा सा ठंडा रहूंगा, ज्यादा हर जगह आग उगलूंगा नहीं, हर जगह जाके सब कुछ बोलूंगा नहीं, मैं थोड़ा शांत रहूंगा। कोई लगेगा कि इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं थोड़ा सा कुछ क्लोज फ्रेंड्स तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ताकि मैं कभी मेरे को नीड लगे, मेरे को कुछ हेल्प लगे, सीख करनी हो हेल्प, तो मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूँ। ये जो आपने बोला कि एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट के बीच में डिफरेंशिएशन एंड एवरीथिंग, डू यू थिंक दैट इवन व्हेन इट कम्स टू एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सपोज एंजाइटी है किसी को एंड दे आर लाइक कि दे आर नॉट अवेयर दैट दे हैव एंजाइटी, दे आर जस्ट सेइंग दैट ओके आई एम फीलिंग एंग्शियस, कोई सिचुएशन आया कि मुझे ज़्यादा घबराहट हो रही है एंड एवरीथिंग, सो डज दैट ऑल्सो क्वालिफाई एज अ साइन कि उनको एंजाइटी है, या इज देयर अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड कि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने पे ही वो एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाएगा उसको? नहीं नहीं नहीं, सो इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि एवरीवन हैव अ डिफरेंट थ्रेशोल्ड। सो हम्म। थ्रेशोल्ड हर किसी का बदलेगा सिम्टम्स के हिसाब से। अभी किसी को वो सिम्टम ज्यादा फील हो रहा है, तो वो उसके लिए गुड इनफ रहेंगे टू हैव फंक्शनल इम्पेयरमेंट। तो जब तक किसी इंडिविजुअल को सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनल इम्पेयरमेंट नहीं होगा, तब तक उसको डिसऑर्डर लेबल करके ज्यादा सेंस नहीं बनता है। बिकॉज इवन इफ ही इज एंशियस, ही इज फाइटिंग some level of anxiety is always necessary to work। अगर आपको वो एंजाइटी नहीं है तो आप बेफिक्रे हो जाओगे, आप वो काम भी नहीं करोगे। एग्जैक्टली exactly। तो वो थोड़ी जो उसको एंजाइटी हो रही है, वो थ्रेशोल्ड उसके बहुत हाई है, उसको वो एंजाइटी में वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है,
तो कोई इश्यू ही नहीं है. Even if symptoms are severe, but he is able to manage that, handle that. Obviously, he should be aware of that. He should be understanding कि ये कभी बहुत ज्यादा भी हो सकता है, इस लेवल से ज्यादा भी हो सकता है, वो जरूरी है. But unless and until it causes a significant socio-occupational impairment, आप आप अपनी जो लिविंग है, फंक्शनल डेली लोगों से आप आराम से मिलजुल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट मच एंजाइटी इज नॉट गुड इनफ टू कॉल इट एज डिसऑर्डर, एंड इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जिसको थ्रेशोल्ड लो होगा, उसको थोड़ी सी एंजाइटी में भी फंक्शनल इंपेयरमेंट हो जाएगा कि नहीं, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है. मैं एग्जाम पे आंख से आंसू निकलने लग जाएंगे और पेन चलेगी ही नहीं. पेन अब ऐसे भी लोग होंगे जो पसीने खा खा के पूरा पेपर लिख रहे हैं और टॉप कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनको इतना फिजिकल सिम्टम्स इतने महसूस नहीं हो रहे, लेकिन वो उतना ही उनके लिए बहुत है कि टू गिव अप एंड नॉट डू द एग्जाम. सो दैट्स व्हाट व्हेन यू सेड कि थ्रेशोल्ड सब लोग का अलग अलग रहता है. एंड आई एनकाउंटर्ड दिस विथ माय फ्रेंड इटसेल्फ कि वो मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड थी मेडिकल कॉलेज में. एंड ड्यू टू कोविड देयर वर एवरीवन अराउंड मी वाज पैनिकिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट. सम पीपल वर लाइक कि हर एवरी सरफेस को वो सैनिटाइज करेंगे बैठ के, उसके बाद ही उस पर काम करेंगे या बैठेंगे. some people will sanitize every half an hour, 1 hour, ऐसे भी कर रहे थे लोग. So my friend, she was like that. She was sanitizing everything. She was making sure कि every surface is like clean, and then only she used to work on that. But even after being medical students ourselves, even after understanding all these disorders, we were not able to judge, we were not able to tell her ki this is not normal, this is not something that you are. Because if you go to see COVID के पहले भी वो ये सब करती थी कभी कभी. She used to like be more hygienic than the rest of us in general. सो बट ये कोविड आया उसके बाद और भी उसको वो जो जो भी उसके ट्रेट्स रहेंगे वो और भी एम्पलीफाई हुए. सो आफ्टर ऑलमोस्ट यू कैन से अ ईयर ऑफ गोइंग थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस, she attended a psychiatry seminar and she got to know that she has anxiety. She has a certain level of that anxiety situation, and that amplifies the most, especially when, as you said, that it hampers a socio-occupational status. So it was hampering her socio-occupational status. She was not going out with us anywhere. She would not even eat at a restaurant. She would always be inside her own mask. And she would not be able to sometimes even get up from bed or be able to even like come to college some days. So ये सब होता था हमारे साथ, and we never really understood कि उसको actually ये सब हो रहा है, and we were not able to help her out at that time. She herself understood, she got the insight कि उसको ऐसा ऐसा situation है, and that is when she finally took help from a psychiatrist. Yeah, absolutely. Being aware of it, and that's the purpose of all these uh, podcasts, these reels, and these social media things we are doing is कि लोग वो सुने, एंड जब वो सुनेंगे तब वो रिलेट कर पाएंगे, एंड बिफोर इट हैम्पर्स योर लाइफ टू एन एक्सटेंट कि बहुत मॉर्बिडिटी बढ़ जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाए, उससे पहले ही वी कैन टेक हेल्प. मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये टेस्ट करवा रहे हैं हम लोग, इसमें कुछ नहीं आया है, क्यों करवाया टेस्ट. सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समथिंग एज सिंपल एज अ नेगेटिव टेस्ट. कि जब आप वो टेस्ट करवा रहे हो एंड यू आर गेटिंग अ नेगेटिव रिपोर्ट, दैट्स अ गुड साइन. लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव. इनफैक्ट इंडिया में तो सबको सबको कुछ ना कुछ उसका पैसा दिया है तो वो वसूल होना ही चाहिए. सो पीपल वेट, यस, पीपल वेट फॉर द एक्सट्रीम थिंग्स टू हैपन, तब जाके डॉक्टर को दिखाएंगे. अरे अभी Right. तो ठीक है ना, अभी तो क्या है, एक हफ्ता ही तो हुआ, एक हफ्ते से ही तो खा पी नहीं रहा है, थोड़ा और देखते हैं उसके बाद दिखाएंगे. सो पीपल वेट फॉर द एक्सट्रीम कि जब हम उसी समय दिखाएंगे जब हमारे हमारे बाल इतने बड़े हो जाएंगे कि कटवाने वसूल होते हैं. तो उस तरीके की मेंटालिटी हम लेके घूमते हैं. तो वो खुद की हेल्थ के लिए थोड़ा सा हमें मोर सेंसिटिव होना चाहिए, थोड़ा सा मोर दिल खोल के Aware. खर्चा करना चाहिए. ठीक है, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि प्राइवेट में ही दिखाओ. यू कैन ऑलवेज अप्रोच अ गवर्नमेंट सेक्टर. बहुत गलत इमेज बना रखी है लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की.
बिल्कुल ऐसा नहीं होता जैसा लोग सोच रहे हैं। कुछ कुछ में भी अ, कुछ डिपार्टमेंट्स में होता होगा, बट देयर आर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट जो कि बहुत वेल रन होता है, बहुत वेल मेंटेन्ड होता है। इनफैक्ट बड़े-बड़े लोग, अ, अच्छे-अच्छे अमीर-अमीर लोग भी गवर्नमेंट आके दिखाते हैं डॉक्टर्स को। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट के पीछे ही भागते हैं। सो यू कैन ऑलवेज एज़ पर योर पॉकेट you can go to a government doctor also. It's better to take an opinion than rather just sit and wait and watch for things go bad, things go worse day by day. So I बिल्कुल। was saying कि you interesting that thing that you mentioned कि people don't approach anyone until and unless they are extremely that situation reaches कि उनको help लेनी ही पड़ेगी. So I have encountered this in physiotherapy also. Um, when it comes to psychosomatic disorders also, like people are having pain, and that pain is unrelated to any structure in their body. So I see almost maybe 10 patients of back pain in a year. Maybe you can say like a very vague number. So 10 patients may say I would guarantee that at least one or two patients, maybe three patients are like that, जिनको जो भी उनका पेन है वो that cause is due to some mental health issue. Like I had a patient जिनको neck pain होता था, and she that neck pain when it would come was when she would have a deadline and she had to rush everything. She would be working long hours, and along with long hours again that entire stress related issues would also be there. तो उसको ज़रूरी है ही कि उसको नेक पेन होगा ही वो टाइम पे. So she will definitely come to me and she will say कि listen, I am having a lot of pain and please do something about it. So when I would take her in the session, मैं क्या करती हूँ, I would just talk to her. I would just talk to her about her daily routine. I would talk to her कि क्या चल रहा है, कुछ नया हुआ है लाइफ में. So immediately she would start opening up कि okay, I have so and so stress. I am really afraid of something. She would talk about her fears. All of those things would be there. And I have touched her maybe for just 15 minutes in that entire 1 hour session, and she would automatically message me that same day कि मुझे 50% better है, thanks a lot. So ऐसे ऐसे भी होता है कि they have some kind of a mental health issue, stress, most likely stress. Because of that they are having pain after that. So there is a न्यूरोबायोलॉजी बिहाइंड इट कि जैसे ही मैं बात कर रहा था वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एलिमेंट्स की। सो जो भी हम सेंसेस फील करते हैं इस बॉडी में, वो वॉलंटरी नहीं है। हम चाह थोड़ी रहे हैं कि हम कुछ फील कर रहे हैं, बट जैसे ही हमें कोई टच करता है, ये हैंड इस हैंड पे जब छूता है, तब ऑटोमेटिकली यहाँ से नर्व से वो सिग्नल पास होता है, हमें मैसेज मिलता है कि कोई स्टिमुलाई आया है। अब ये टच है, ये प्रेशर है, ये पिंच है, एक सुई चुभाई तो वो शार्प पेन, अगर आग लगाई तो वो फायर, अगर आइस लगाया तो वो ठंडक। ये सारे जो सेंसेशंस है वो हमारे बॉडी के जो नर्व्स है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। अब डिप्रेशन में ऐसा पाया गया है कि बॉडी के जो ये जो नर्व स्टिमुलस है वो हाइपर एल्जेसिक हो जाते हैं। मतलब चाह इंडिविजुअल को जो सेंसेशन फील हो रहा है वो उससे मल्टीप्लाई होकर ज्यादा फील होता है, बिकॉज एक सब्सटेंस पी करके न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो स्ट्रेस में बढ़ जाता है बॉडी में। सो जब भी किसी को जरा सी भी नेक स्टिफनेस या बैक एक या कुछ वो बेसिक नॉर्मल इंडिविजुअल को जो थ्रेशोल्ड पे फील होएगा, डिप्रेशन के इंडिविजुअल को, बिकॉज ऑफ दैट हाइपर एक्साइटेशन ऑफ नर्व्स, वो ज्यादा ही फील होगा। एंड बिकॉज उसका कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है, सो उसको लेबल साइकोसोमेटिक कर दिया जाता है। बट व्हाट आई एम सेइंग कि उसको साइकोसोमेटिक लेबल करने से ज्यादा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ पार्ट ऑफ साइकेट्रिक इश्यू विच इज हैपनिंग। डोंट लेबल इट, इट्स अ डिसऑर्डर, यू हैव टू ट्रीट इट जस्ट लाइक अदर डिसऑर्डर। अब ऑब्वियसली हम पीटी से उसकी मसल स्ट्रेंथन करेंगे, उसको थ्रेशोल्ड जो फील हो रहा है कि वो पेन थ्रेशोल्ड उसका बढ़ाएंगे ताकि उसको जो पेन है वो कम फील हो। बट एट द सेम टाइम उसकी जो एंजाइटी या जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेसिव सिम्टम्स है, उसको भी हमें बैक टू बैक कम करना ही पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप उसको लाइटन नहीं करोगे,
तब तक वो कितना भी आप बाहर से स्ट्रक्चरली उसको ठीक करते जाओ, बट इंटरनली जो उसको सेंसेशन जो न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा रिलीज हो रहा है उसको करना है। आई एम नॉट सेइंग कि मेडिसिन देनी ही पड़ेगी उस चीज के लिए, जस्ट अ सिंपल कन्वर्सेशन, जैसे जैसे आपने वाइल डूइंग द थेरेपी उससे बात करी, बिकॉज जब वो बात करी तो उसने कुछ शेयर किया तो उसको थोड़ा सा हल्का फील हुआ, एंड जैसे ही उसको हल्का फील हुआ दैट बर्डन जो कि उसके बॉडी को वो डिप्रेसिव स्टेट में फील हो रहा था वो अपलिफ्ट हो गया, एंड वो बर्डन अपलिफ्ट हुआ तो शी विल बी फीलिंग बेटर, एंड उसमें यू ऐड द योर स्ट्रक्चरल वाला जो फिजियोथेरेपी वाला एलिमेंट एंड शी विल बी मच मोर बेटर। सो ये जब मिलकर चीजें होती है तब वो काफी, अगर सिर्फ मैं डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करूंगा तो उतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ पीटी किया हम्म, जाएगा तो भी उतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा। सो जब दोनों एलिमेंट्स साथ में एड्रेस किए जाएंगे तब देयर विल बी अ रियल improvement and which will be a long lasting improvement, because ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस तो लाइफ में आती ही रहेगी, कभी कुछ। किसी के लिए स्ट्रेसफुल क्या होता है कि आज दूध उबल के गिर गया, किसी के लिए स्ट्रेसफुल होता है कि घर में किसी की मौत हो गई। सो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैव अ डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। किसी के लिए बहुत पैसा खराब हो जाता है तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, किसी के लिए वो अर्न नहीं कर पाता है, मतलब उसका कुछ जेब से नहीं गया है, लेकिन वो आज जितना अर्न कर सकता था उतना अर्न नहीं किया, वो स्ट्रेसफुल हो सकता है। सो एवरीवन हैव अ डिफरेंट स्ट्रेस थ्रेशोल्ड, सो उसके हिसाब से पीपल हैव डिफरेंट इमोशनल एंड फिजिकल रिएक्शंस। डिप्रेशन में बॉडी एक, हेड एक, ये सब बहुत कॉमन है। इसके अलावा भी बहुत सारे और चीजें, जैसे कि कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, खा भी लिया तो टेस्ट नहीं आता है। सो लोग बोलते हैं डिप्रेशन में बहुत कि खाते हैं तो हमें कुछ स्वाद नहीं लगता, हमें कुछ ऐसा लगता नहीं कि बहुत टेस्टी खा रहे हैं, उतना हमें कुछ उसका वैल्यू निकल रहा है। एनर्जी बहुत लो हो जाती है, शरीर बहुत जल्दी थक जाता है, फटीगनेस बहुत जल्दी फील होती है। उनका कंप्लेन रहता है कि पहले तो मैं इतने घंटे लगातार काम कर लेती थी, आंटीज लोग बोलती है, पर अभी तो मैं थोड़ा सा करती हूँ लेकिन मेरा हाथ, दो रोटी बेलते मेरा हाथ पांव दुखने लग जाता है। अब वो जो oh, फटीगेबिलिटी है, yeah. देर इज देर इज नो फिजिकल, कुछ हुआ ही नहीं है फिजिकल, तो आपकी मसल्स तो वैसी की वैसी है, तो वो फटीग कैसे हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ द बर्डन विच डिप्रेसिव इमोशनल स्टेट हैव गॉट ऑन टू इट, एंड वो न्यूरो जो बॉडी में हे वायर गए हैं, जिसकी वजह से बॉडी की जो मसल एक्टिविटी है वो जल्दी डिप्लीट हो जा रही है। जितने भी कैल्शियम एंड जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो जल्दी डिप्लीट हो जा रहे हैं, तो बॉडी चाहकर भी जल्दी काम नहीं कर पाती, इतनी जल्दी फटीग हो जा रही है। सो उस फटीगनेस का इनिशियल पीरियड में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जब वो परसिस्टेंट होने लगता है तब एक माइंडसेट बन जाता है, एंड इट बिकम्स अ प्रोलॉन्ग्ड इवेंट, जहां पे अब इंसान जब मूड थोड़ा बेटर भी हो गया तब भी वो फटीग फील करता है कि जब वो जो डिप्रेसिव इमोशनल स्टेट चला गया उसके बावजूद भी वो फटीग फील करता है, बिकॉज इतने टाइम से जब वो न्यूरो हे वायर हुए गए थे तो बॉडी उसके ऊपर अडेप्ट हो गई थी। न्यूरो कैसे वर्क करते हैं कि कुछ भी अगर लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है तो उसको कंपनसेट करने के लिए रिसेप्टर्स भी बढ़ा देती है, तो जितने ज्यादा रिसेप्टर होंगे उतने ज्यादा न्यूरो की नीड होने लग जाती है। फिर किसी कारणवश आपने समझो न्यूरो के लेवल कम कर दिए, यानी कि जो भी इमोशनल स्टेट थी वो अभी जा चुकी है, तो अब इमोशनल स्टेट की वजह से जो न्यूरो बढ़े हुए थे वो तो चले गए, लेकिन क्योंकि अभी रिसेप्टर अभी भी उतने ही हैं कंपेंसेटरी जो लास्ट टाइम बढ़े थे, अब वो रिसेप्टर खाली रह जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो न्यूरो ज्यादा थे उनपे लगने के लिए, अब वो रिसेप्टर जब खाली रह जा रहे हैं तो बॉडी को ये मैसेज मिल रहा है कि जितने रिसेप्टर है उतने तो न्यूरो नहीं है, तो बॉडी जबरदस्ती न्यूरो वापस बना लेता है। सो इवन वेन आपका जो स्ट्रेस है वो चला जाता है कि अब ये स्ट्रेस तो है ही नहीं, अब तो मेरी जो भी मेरा लोन था वो मैंने चुका दिया है, बट स्टिल बॉडी फटीग फील हो रही होती है। सो उससे बाहर निकालने के लिए अगेन सिर्फ मेडिकेशन या थेरेपी से ज्यादा फिजियोथेरेपी भी उसमें रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज जैसे वो उस बॉडी का फिर से मोबिलाइजेशन चालू होता है, अडेप्टेशन नॉर्मल चालू होता है, देन ऑटोमेटिकली वो धीरे 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 उसके नॉर्मल लेवल्स एंड कंपनसेटरी जो रिसेप्टर्स बने हैं वो अपने नॉर्मल लेवल्स पे आता है। अगेन वो जो आपने बोला कि ओके यू नो फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प, तो इसमें माइंड बॉडी कनेक्शन का भी एक रोल आ जाता है। सो वट एवर एब्सोल्युटली। यू थिंकिंग it will be coming out in your body in some or the other physical symptom, and whatever you do in your daily life, whatever physical activity you do or you do not do, वो भी आपके माइंड पे रिफ्लेक्ट होगा। सो इफ आई
I'm spending maybe 1 week in going to the gym. I go every single day and I'm exercising over there. So that is like my favorite activity to do every day. And I do that for a week. अभी 7 days जाने के बाद अगर मैं एक या दो दिन नहीं जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली आई एम गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग लो. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग कि समथिंग इज मिसिंग. आई एम नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट. सो फिजिकल एक्टिविटी अगर कम कर दोगे तो भी आपका मेंटल, यू आर गोइंग टू फील मेंटली ऑल्सो fatigued. You will feel like you don't want to do things. And at the same time, because आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है उसके वजह से भी आप फिजिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो. यू नॉट एबल टू डू द बेस्ट फिजिकली ऑल्सो. सो a lot of athletes अभी बीच में जोकोविच का ही there was an interview कि how do you maintain such good physical levels and how are you able to win so many grand slam titles. तो उन्होंने यही बोला कि the reason why I am able to do everything is because I meditate every single day. I make sure कि मैं भले ही उस दिन ट्रेनिंग जाऊँ या नहीं जाऊँ बट एटलीस्ट मेडिटेशन के लिए तो आई एम डेफिनेटली सिटिंग. And if I have any issues with my mental health, I immediately consult a psychologist, a counselor, or anything else. Because I know that when I am over there on field for 6 7 hours at a time, fighting against my opponent to win, my mental health is what is going to carry me forward. मेरा फिजिकल हेल्थ तो शायद मेरा एंड्योरेंस खत्म भी हो जाए लेकिन मेंटली अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू गो फॉरवर्ड. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जितने भी इनफैक्ट ये जो परफॉर्मेंस वाले चीज है, इनफैक्ट इन लाइफ आल्सो, जो भी इंसान भले कोई एथलीट नहीं है बट अपना जो डेली वेजेस वो जो अर्न कर रहा है, वो जाके जहाँ पे भी काम कर रहा है, दैट इज ऑल्सो परफॉर्मेंस। वो हम्म. ठीक है, मीडिया पे नहीं आ रही है, उसके लिए उसको मेडल नहीं मिल रहा है, लोग उसको देख नहीं रहे हैं, बट स्टिल वो जो भी अपना काम कर रहा है, दैट्स अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस which is giving to earn for his family, his or her family. If a girl is working, that applies same for her. But the fact that this performance is daily, it's not कि कोई monthly है, it's going to be daily. तो आप अपना माइंडसेट अगर उस परफॉर्मेंस के लिए रोज रेडी रखोगे, रोज स्ट्रेंथन रखोगे, तो इवन व्हेन योर बॉडी गिव्स इन, दैट मेंटल पुश इज नेसेसरी. And when your body is fit and fine but your mind is not at the right moment, you will not be able to work even if you want to work. So there's always a mind and body reciprocal relationship. I'll always, again and again repeat, because I am a psychiatrist, so I will not advocate कि माइंड की वजह से ही बॉडी काम कर रही है. नो, इट्स ऑलवेज रेसिप्रोकल. बॉडी की वजह से भी माइंड काम कर रहा है. द वे यू फील अबाउट योर बॉडी, यू आर मच मोर कंफर्टेबल विद योर माइंड ऑल्सो. क्या आपको लग रहा है कि आप फिट एंड फाइन हो, आपकी बॉडी अच्छी स्टेट में, अच्छी फिजिकल हेल्थ में है, तो आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली बेटर मूड में रहेगा. बट इफ आप टायर्ड हो बहुत ज्यादा, या आपको कोई इलनेस हो गई है, समझो फॉर एग्जांपल आपको कोई सडन बुखार आ गया है, तो दैट्स अ फिजिकल इलनेस विच यू आर गोइंग थ्रू. बट किसी को भी जब बुखार आता है तो उसका मूड लो होता ही होता है, तो दैट मेंटल हेल्थ ऑल्सो डिप्स. सो इट्स ऑलवेज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. जितना आपको बॉडी का ध्यान रखना है उतना आपको माइंड का ध्यान रखना है, जितना आपको माइंड का ध्यान रखना है उतना बॉडी का. सो ट्रीट, यू शुड ट्रीट इट एज बोथ अ सिमिलर थिंग. एंड इट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने पे हो जाएगा. देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर द अप्स एंड डाउन्स. वन बीइंग जेनेटिक्स, कि आप कितना भी चाहो, जेनेटिक्स इज देयर, you can't modify हम्म. that. You obviously uh, ओके. be more aware of it. For example, if आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है, आपके लीनिएज में सबको डायबिटीज है, जैसे मेरे मेरे फादर को है, मेरे बड़े पापा को है, मेरे दादाजी को थी, तो मेरे फैमिली में सबको है, and सबको काफी यंग एज में डायबिटीज एंड हार्ट इश्यूज वगैरह पता चल जाते हैं. सो मैं उससे डरूंगा नहीं. मुझे पता है कि देयर इज सम जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन जिससे मैं सफर करने वाला हूँ मेरी लाइफ में. बट इफ आई एम अवेयर ऑफ इट एंड मैं मेरी थोड़ी सी हेल्दी लाइफस्टाइल रखूँ, मैं थोड़ी सी मेरी डाइट जो है वो कंट्रोल में रखूँ, तो आई विल बी मोर प्रिपेयर्ड टू फाइट विद इट. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बड़ा बदल दूंगा, बट आई आई कैन एम्पावर माई सेल्फ कि कुछ हो भी जाए तो आई विल बी मच मोर ऑक्यूपाइड टू हैंडल माई सेल्फ कंपेयर टू अदर्स, दोज हु आर नॉट अवेयर के उनके जेनेटिक्स, उनके जीन्स में क्या प्रॉब्लम है. सो इट कैन बी एन एडवांटेज ऑल्सो. सो जेनेटिक्स
is not always a bad thing, but yeah, this is something which is non modifiable. Even personality, लोग बोलते हैं कि पर्सनैलिटी लोग चेंज कर सकते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. इसीलिए किसी को चेंज करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनको ये समझाओ कि आप अपनी पर्सनैलिटी में ही कैसे मच बेटर पर्सन बन सको, लोगों को अपने आप की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो लोगों तक पहुंचा सको, एंड सबसे पहले आप खुद समझ सको कि आपको क्या है. अगर आप पर्सनैलिटी अपनी समझ पा रहे हो तो आप उसके हिसाब से लोगों से डील कर पाओगे, एंड उसके हिसाब से जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे उसके हिसाब से आप लोगों से डील कर पाओगे. जिसमें डिपेंडेंट जो लोग होते हैं उनका कोई, फॉर एग्जांपल इफ मैं मेरी मदर पे बहुत डिपेंडेंट हूँ, इफ सम डे समथिंग हैपन टू माय मदर, आई विल बी वेरी वेरी मतलब सिंक, एकदम मैं डूब जाऊंगा कहीं तो, because I am dependent. But if I am aware of the fact that I have a dependent personality trait, so I'll be prepared कि मुझे dependency किसी पे इतनी रखनी ही नहीं है, so that if somebody goes away, obviously I'll grieve, मुझे बुरा लगेगा ही लगेगा, but I'll be able to handle myself in better way. So ये personal जो characters है, traits है, उनको जानना इसलिए बहुत जरूरी होता है, so that you can be able to control them, have a hold of them. एंड सब्सटेंसेस या ड्रग्स, अल्कोहल, कैनाबिस, जितने भी तरीके के साइको एक्टिव प्रोडक्ट्स है, ओपियम हो गया या जो भी तरीके के ड्रग्स है, इवन मेडिकेशंस बहुत सारी इस तरीके की जो लोग गलत तरीके से यूज करते हैं, ऑल दीज हैव सम और अदर इफेक्ट ऑन बोथ बॉडी एंड माइंड. तो आप अगर वो ले रहे हो देन यू आर लूजिंग द कंट्रोल विच यू जनरली हैव ऑन योरसेल्फ. अल्कोहल में शॉर्ट टर्म कुछ बेनिफिट मिलता है लोगों को कि हाँ मूड अच्छा हो जाता है, नींद अच्छी आ जाती है, बट जब वो लॉन्ग टर्म होने लगता है तो बॉडी की जो डिपेंडेंस है वो बढ़ जाती है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज की बात करी थी, तो एक्सरसाइज इज अ गुड एडिक्शन. गुड एडिक्शन, एडिक्शन क्यों वर्ड यूज किया गया, जस्ट फॉर द रीजन कि एक्सरसाइज पे भी बॉडी थोड़ी बहुत डिपेंड होती है, बिकॉज जब कभी आप एक्सरसाइज अचानक से छोड़ते हो तो आपको विड्रॉल यानी कि थोड़ा जो फटीगनेस है वो फील होता है. सो जिस भी चीज में इस तरीके की डिपेंडेंसी एंड विड्रॉल साइंस देखी जाती है वो यूजुअली उनको एडिक्शन टर्म यूज किया जाता है. बट एक्सरसाइज इज गुड एडिक्शन बिकॉज इफ यू कैन डू इट persistently it will help you, but drugs are a bad addiction. If you do it persistently they will hamper your life to an extent कि आप जितने भी आपकी ये जेनेटिक्स पर्सनैलिटी आपने भली अच्छी करके रखी हो, you will not be able to handle the stress in your life properly because आपने बाहर से कुछ इस तरीके के केमिकल्स डाल रखे हैं. That's why मेडिकेशंस भी इनफैक्ट जो कोई भी लेता है उसको सुपरविजन से ही लेनी चाहिए ताकि पता रहे कि वो क्या ले रहा है. इवन ए सिंपल एंटीबायोटिक, लोग पहले दिन कुछ खांसी कफ हुआ सीधा एंटीबायोटिक खा लेते हैं बिकॉज उनको याद है कि कभी 6 महीने पहले उनको खांसी हुई थी तो डॉक्टर ने अजिथ्रोमाइसिन बोली थी 5 दिन के लिए, तो जस्ट बिकॉज आज थोड़ी सी खांसी हुई हो फिर से वो अजिथ्रोमाइसिन चालू कर देते हैं. वो अजिथ्रोमाइसिन या तो 3 दिन लेते हैं या 7 से 10 दिन लेते हैं, बिना सोचे समझे ले लेते हैं. अब व्हाट दैट इज डूइंग इज कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्या पता वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था ही नहीं है, बिकॉज एजिथ्रोमाइसिन इज एंटीबायोटिक, वो बिना कोई इन्फेक्शन के वहां कुछ नहीं करेगी, स्पेशली अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ही नहीं तो कुछ नहीं करेगी, बट वो एक नुकसान भी करेगी. वो नुकसान ये करेगी कि आपने बॉडी में क्योंकि बिना वजह उसको डाल दिया तो बॉडी को एक मैसेज मिला कि वो आया है, एंड बॉडी जो भी कुछ बॉडी को बाहर से मिलता है बॉडी उससे फाइट करता है. अल्कोहल से लीवर क्यों खराब होता है, क्योंकि अल्कोहल जब बॉडी में आता है तो लीवर अल्कोहल से फाइट करता है. जितना ज्यादा अल्कोहल पिएगा उतना ज्यादा लीवर फाइट करेगा. अब लीवर क्योंकि फाइट करेगा तो लीवर थकेगा. लीवर उस काम के लिए थोड़ी ना बॉडी में फिट किया कि जाके अल्कोहल पचाओ, तो लीवर फाइट करेगा तो लीवर कमजोर होएगा, एंड लीवर कमजोर हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स होगी. तो बॉडी में जो भी कुछ बाहर से आएगा तो प्रॉब्लम करेगा ही. तो एजिथ्रोमाइसिन क्योंकि बाहर से आपने डाला है, वो एक केमिकल है तो बॉडी को उसको फाइट करना पड़ा. अब जबरदस्ती कोई उसकी नीड नहीं थी फिर भी बॉडी से आपने फाइट करवाई, तो फ्यूचर में कभी कोई इन्फेक्शन होगा जहां पे एजिथ्रोमाइसिन काम कर सकती थी. अब क्योंकि बॉडी ने पहले उससे फाइट करना सीख लिया है तो अब एजिथ्रोमाइसिन लोगे तो बॉडी फटाफट फाइट करके उसको हरा देगी, तो वो एजिथ्रोमाइसिन काम ही नहीं करेगी. इस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंडिया में इतने सारे लोगों को डेवलप हो चुका है कि जब कोई बड़ी बीमारी होती है तब वो टेस्ट करवाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का. एक बड़ी सी लिस्ट आती है एंटीबायोटिक की, उसमें सबके आगे नेगेटिव आता है, मतलब ये एंटीबायोटिक उनको काम नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने खुद से ही या फिर किसी
लोकल लोकल डॉक्टर या लोकल केमिस्ट से डायरेक्टली उन्होंने दवाइयाँ खा ली, तो अब उनको वो बेनिफिट मिल ही नहीं सकता। तो व्हाटएवर यू पुट इन योर बॉडी is going to affect your body and then automatically will affect your mind also. अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट द माइंड एंड बॉडी, अभी फिजिकल एक्टिविटी की तो बात हो गई, बट अगेन अनदर थिंग दैट कम्स इनटू माइंड इज फूड। जो भी आप खा रहे हो वो भी आपके मेंटल हेल्थ पे Absolutely. काफी वेरी ग्रेट। सो Yeah, so यू vegetative functions. एडजस्ट योर दिस थिंग ईयरफोन्स बिकॉज उससे डिस्टर्बेंस आ रहा है। Yeah, so vegetative functions. So these all are vegetative functions: sleep, appetite, bowel, bladder, and even sexual activity. So these five vegetative functions are very important. And whenever we assess a patient, we obviously and always assess all these five functions, because किसी की अगर ये five functions proper नहीं है तो पक्का है उसको कोई ना कोई body या mind का problem है ही है। So whatever you eat is obviously going to impact your body directly and mind indirectly. आप कभी अच्छा खाना खाते हो तो वो हो सकता है कि बॉडी के लिए हेल्दी नहीं हो, पर वो माइंड के लिए हो सकता है कि बहुत फ्रूटफुल हो, बहुत मजा आ गया खा के। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दैट आल्सो कि So हाँ आप again, what comes into this thing is key, the gut health. So what is good for your gut? So your gut also has a lot of bacteria which are good for you, and या surprisingly those bacteria are very important for your mental health also, क्योंकि वो bacteria से आपके सारे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, ये एब्सोल्युटली सारे वो गट बैक्टीरिया से सिक्रीट होते हैं। Now, if you are eating something sugary, something sweet, that will give you a temporary high, it will give you a temporary boost mentally, लेकिन वो आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत खराब है। सो आपके गट बैक्टीरिया वो शुगर लेके they are going to start dying, the good bacteria and the bad bacteria will come up. So because the bad bacteria are going to come up, in a long term you are going to start getting sugar cravings, आपको sugar crashes होंगे उसके वजह से, you won't be able to perform without getting some or the other that again that addiction comes into picture कि जब तक आपको वो शुगर नहीं मिल रहा तब तक आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप मेंटली आपको लगेगा कि आप बहुत लो हो, बट अगेन दैट शुगर इज ओनली गिविंग यू अ टेम्परेरी हाई एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर गट। तो अगेन व्हाट फूड यू आर ईटिंग, व्हाट हाउ मच कितना वो नरिश कर रहा है आपके बॉडी को, आपके गट को, वो भी दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल माइंड बॉडी कनेक्शन थिंग, जो आपके मेंटल हेल्थ को वो बेनिफिट कर सकता है। या इसी का रेसिप्रोकल कि इफ माइंड इज नॉट फाइन, इफ मेंटल हेल्थ इज नॉट फाइन, तो रेसिप्रोकल में डिप्रेस्ड इंडिविजुअल ईदर विल ईट टू मच बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस हो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको वो कंफर्टिंग फूड वो बार बार शुगर या इस तरीके की चीजें जो कि वो करता है, एंड दैट मे इवेंचुअली लीड टू ओबेसिटी। एंड इफ द अदर स्पेक्ट्रम, अदर एक्सट्रीम ऑफ दैट कि खा ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं खा रहा बिकॉज इतना डिप्रेस्ड है कि बिल्कुल भी नहीं खा रहा। सो बोथ वेज at the in the long run, because of the mental health issue of not eating or eating too much, will lead to physical health issue, because obesity हो सकती है या फिर malnutrition हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आज का जो हम टॉपिक जो हम सोच रहे थे वो इट केम जस्ट ऐसा फ्रॉम द लिरिक्स ऑफ ए सॉन्ग के कहने को है मेरा पर मेरी सुनता नहीं। सो body and mind, they both have a reciprocal relationship with themselves, but हम जितना हम सोचते हैं कि बॉडी और माइंड हमारे कंट्रोल में है उतना है नहीं इन जनरल भी। एंड जब मेंटल इश्यूज होते हैं तब वो और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सो ये जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का खेल है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम वॉलेंट्रली करते हैं, जैसे कि मोटर एक्टिविटी हो गई, मैं अपना हैंड मूव कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ, एंड बहुत सारी चीजें इनवॉलंटरीली ऑटोमेटिकली बॉडी में हो ही रही है। जैसे मैं अभी ब्रीथ कर रहा हूँ, मैं सो जाता हूँ, मेरी बॉडी पूरी अनकॉन्शियस है, स्टिल आई कैन ब्रीथ, मेरा हार्ट अभी भी बीट कर रहा है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा चालू रहता है, मैं आईज थोड़ी थोड़ी दिन में ऑटोमेटिकली मेरी ब्लिंक हो रही है, तो ये चीजें इनवॉलंटरी है। सेंसरी सिस्टम मेरा मेजरली बहुत इनवॉलंटरी है, जैसे मैं जो देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, टच, प्रेशर, मैं जो स्मेल कर रहा हूँ, मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, एवरीथिंग हैव अ सेंसरी मीनिंग टू इट। एंड ये कितना भी आपके आप कोशिश करो कि मैं चाहूंगा वो ही देखूंगा, बट
क्योंकि इसमें हर जगह पे कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर नर्व्स इन्वॉल्व्ड है, तो वो हेयरवायर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी चीज़ कि घर में कुछ पक रहा है, तो उसकी खुशबू आती है। तो वो खुशबू जब हमारे नाक तक पहुँचती है विद विद आवर सेंस ऑफ स्मेल, हम ड्रूल करने लग जाते हैं, हमारे सलाइवेशन जो है वो चालू हो जाता है। जबकि हमने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, बट इट्स अ रिफ्लेक्स which is happening because of our sense of smell. Even vision, अच्छा सा खाना दिखाए तो कोई फ़ोटोग्राफ़ी में लगा है उस फूड की, बट इधर मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है कि मैं इसको कब फटाफट खाऊँगा। इवन बारिश, अभी इधर बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश की जो आवाज़ है, मैं गेट वेट बंद है, तो मुझे वो खुशबू नहीं आ रही मिट्टी की, बट स्टिल जो बारिश की आवाज़ है, वो आवाज़ खुशबू प्रोड्यूस करती है। वो आपको एक सेंस दिलाती है कि वो कैसा एक एक्सपीरियंस रहता है बारिश का। So all these senses are always acting, always working, and this is a normal experience which I have shared. But यही अगर abnormal हो जाए, for example, आँखों के आगे कुछ नहीं है, but still you are seeing things. जो लोग बोलते हैं कि भूत पिशाच हमने हमारे गाँव में देख लिया कि पीपल के पेड़ के नीचे एक चुड़ैल भाग रही थी इधर से उधर. That can be an aberrant visual activity कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे जभी भी एक्टिवेट होता है तब आपको कुछ दिखता है. बट ये न्यूरोट्रांसमीटर एबरेंटली कभी भी एक्टिवेट हो सकता है. जब वो एक्टिवेट हो जाता है तब इवन स्टिमुलाई नहीं है, मतलब आँखों के सामने देखने के लिए कुछ भी नहीं है, बट स्टिल क्योंकि ब्रेन में वो जो एक एरिया है वो एरिया लाइट अप हो गया है, तो वो कुछ ना कुछ इमेज बना देगा। अब वो इमेज जो है वो हमारे इमोशनल स्टेट पे भी कई बार डिपेंड हो जाती है, कि आप अगर डर रहे हो तो आपको कुछ उस तरीके का भूत वगैरह दिख जाता है। इवन हैलुसिनेशंस जो हम सुन जैसे कहीं हम अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है आजू-बाजू, फिर भी हम किसी की आवाज़ सुन रहे हैं, कोई नॉक-नॉक कर रहा है वो सुन रहे हैं। अब इमेजिन अगर ये आपके साथ हो रहा है, आप घर में अकेले हो और कोई आवाज़ें आने लग जाए, तो कितना हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाएँगे, क्या हो रहा है, डर जाएँगे, घबरा जाएँगे। इमेजिन अ पर्सन विथ स्किज़ोफ्रेनिया लिविंग विथ दोज़ हैलुसिनेशन जब वो लंबे समय तक ऐसे हैलुसिनेशंस के साथ रहने लग जाता है, तब वो एक अपनी एक इधर वो बहुत डर जाता है, बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है उसको एंड उस डिस्ट्रेस में वो कुछ या तो ईयर्स क्लोज़ कर देगा या फिर खुद को नुकसान सेल्फ हार्म भी कर लेता है कि अरे छोड़ो, मैं तो खुद को मार हमने पेशेंट देखे जो कि खुद के कान को कट कर देते हैं बिकॉज़ उनको इतने आवाज़ से परेशानी होती है। अब सारी आवाज़ें परेशानी वाली नहीं हो सकती। कई-कभार आवाज़ें अच्छी भी लगती है, जैसे कि समझो आपकी वाइफ़ जिसकी अभी-अभी डेथ हुई थी, उस वाइफ़ की आवाज़ें आ रही है। अब बिकॉज़ दैट हस्बैंड वांट्स टू लिसन टू हर वाइफ तो वो में ऐसा हमेशा होता नहीं है कि वो वाइफ की आवाज़ सुनने में खुश होगा। बट स्टिल द वो उन दोनों में उतना इमोशनल कनेक्शन था कि वो अपनी वाइफ की आवाज़ सुन के बहुत खुश होता है। तो वो एक अल्टरनेट रियलिटी बना सकता है कि उसकी वाइफ अभी भी ज़िंदा है एंड वो उससे कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है। अब जब तक कोई थर्ड पर्सन ये देखता नहीं है, तब तक वो ये वाली जो सूडो लाइफ़ है बिकॉज़ ऑफ हिज़ हैलुसिनेशन वो जी रहा है एंड जैसे कोई थर्ड पर्सन देखता है, तो वो देखता है ये क्या कर रहा है? ये तो अकेले में खुद से बातें कर रहा है। क्या हो गया इसको? इस तरीके से। अब हमने कई बार देखा भी है रोड साइड कोई खुद में मटर कर रहे होते हैं, खुद से बातें कर रहे होते हैं। So those are response to what hallucinations he or she is feeling and this is something which is normally happening in our body but अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो हेयरवायर हो गए हैं, अब वो नॉर्मल जो कनेक्शंस है वो जा चुके हैं इसलिए हमको सेंसरी स्टिमुलाई बिना किसी बात के भी हो रहा है। एंड देन रिफ्लेक्सेस यस अगेन इनवॉलंटरी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे कॉर्निया में मेरे आई में किसी ने भी टच किया तो मेरी आंखें ब्लिंक होएगी होएगी अगर मेरे यहाँ पे किसी ने पिन चुभाई तो मेरा हाथ ऐसे झटके से उठेगा ही उठेगा सो इट इज नॉट समथिंग कि मैंने डिसाइड किया कि मैं हाथ उठाऊंगा इतना टाइम भी नहीं था कि मैं सोचूं कि मुझे पिन चुभी है इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन जो कि अपने आप हाथ पे उठ गया विजन ऑल्सो आप थिएटर में जैसे समझो 3-4 घंटे के लिए मूवी आपने देखी है तो आपका जो विजुअल फील्ड है वो डार्क के लिए अडेप्ट हो गया है जैसे ही आप फिर बाहर निकलते हो तो आपको पहले वो डार्क ही दिखता है एंड देन धीरे धीरे रिफ्लेक्सेस जब ओवरराइड करते हैं तो वो डार्क से फिर वो लाइट एडेप्टेशन बॉडी करता है हम सोचते हैं ये क्या हो गया हम किधर है सनग्लासेस पहन रखे क्या उतार के चेक करते हैं बट वो डार्क एडेप्टेशन है एंड वो ऑटोमेटिकली हुआ है वो आपने कंट्रोल नहीं किया कोऑर्डिनेशन आप चलते फिरते हो तो आपकी बॉडी बैलेंस में हमेशा रहती है
अब समझो ये बैलेंस जो आपको नॉर्मली लाइफ में मिला है, आपकी सेरिबेलम से ये बैलेंस मिल रहा है, बट अगर आपको कुछ इशू सेरिबेलम का हो गया तो वो बैलेंस आप लूज कर दोगे। अल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं उनको सेरिबेलम का बैलेंस लूज हो जाता है, तो वो उनको बोलेंगे कि आंखें खोल के सही लाइन में चलो, तो वो आंखें खोल के भी नहीं चल पाएंगे, आंखें बंद करके चलना तो बहुत दूर। तो इस तरीके की चीजें जो हमारे इनवॉलेंट्रीली हमारी बॉडी जो है कैसे ना कैसे तो भी मैनेज कर रही है, उनका हमें रियलाइजेशन जब वो एबेरेंट होती है, जब वो बिगड़ती है, तभी समझता है। जब तक वो सही डायरेक्शन में चल रही है तब तक हमें समझता ही नहीं कि हाँ मेरी तो सांस अच्छे से चल रही है। जब कभी सांस फूलती है, जब कोविड में लोगों ने सैचुरेशन चेक करना चालू किया, तब उन्हें समझा कि नॉर्मल सैचुरेशन क्या होता है, और वो 90% से नीचे देखते ही उनको जो एंजाइटी होती थी, एंड भले ही वो बॉडी 90% पे बराबर सांस ले सकती है बॉडी, बट स्टिल क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि 90% के नीचे है तो कुछ प्रॉब्लम है, तो वो एंशियस जब हो जाएंगे तो वो और डिप हो जाएगी, वो 80-70 पे चली जाएगी, बिकॉज नाउ दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर ब्रीदिंग, एंड उसके कारण वो ज्यादा परेशान होंगे। सो द पर्पस ऑफ ऑल दिस इज कि आप ये समझो कि आपके बॉडी के एंड माइंड के अगेन कॉन्शियस लेवल एंड सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी एक्टिविटीज है, जो भी फंक्शंस है जो कैरी आउट हो रहे हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करें अपने अपने बॉडी के हिसाब से, एंड अवेयर रहें कि कब वो अप एंड डाउन हो रहा है। जब हम अवेयर रहेंगे कि वो अप एंड डाउन हो रहा है, तो हम उसको हेल्प कर सकेंगे, खुद को हेल्प कर सकेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए। एंड जब हम कंट्रोल एंड वर्कआउट रिपीटेडली रेगुलरली करने लगेंगे, तो हमारी बॉडी ऑटो पायलट पे वही चीज बिना किसी हेल्प के कर सकेगी। बट बहुत बार ये जो अप एंड डाउन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तब हमें किसी ना किसी को मिलना है, ये भी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि वी शुड सीक हेल्प एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अब ये सारी चीजें जो है वो बहुत सोसाइटी ड्रिवन है, मतलब कि आप चाहते हो ऐसा फील करना, बट सोसाइटी क्या चाह रही है उसके ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि सोसाइटी उस चीज को स्टिग्मेटाइज करके रख रही है कि एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना, तो लोग क्या बोलेंगे कि पौंगलों के डॉक्टर के पास गया है, इसको कोई पागलपन की बीमारी हुई है, लोग क्या जज करेंगे बैठ के। एंड बिकॉज इट्स अ सोसाइटी ड्रिवन वर्ल्ड, तो हम चाहकर भी या फिर हम स्टेप बढ़ाते भी है तो भी हम पीछे हट जाते हैं। तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के मॉरल बिलीफ्स कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं, एंड हमें उसके ऊपर अपनी लाइफस्टाइल ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस होएगी ही होएगी, बट सबसे पहले हमारी इंडिविजुअल एंड अपना फैमिली वो पहले आएगी। हम जब अपना इंडिविजुअल और अपना फैमिली का ध्यान रखेंगे, देन इवेंचुअली सोसाइटी विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट देमसेल्व्स आल्सो। जब एक आदमी, जैसे आपने जोकोविच का एग्जांपल दिया कि जोकोविच ने आके मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जिन्होंने अपने अपने मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंस, मेंटल इलनेस जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करी है। दीपिका पादुकोण ने इतना बड़ा एक इंटरव्यू दिया था डिप्रेशन से रिलेटेड। सो जब लोग सोसाइटी में इस तरीके से कम आउट करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को वो हेल्प मिलती है, स्ट्रेंथन एक 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 वे आउट मिलता है कि नहीं, हाँ ये ऐसी प्रॉब्लम मुझे भी कुछ महसूस हो रही है। सो बॉडी माइंड तो एक दूसरे को कंट्रोल कर ही रही है, बट ये सोसाइटी भी बहुत कुछ कंट्रोल कर सकती है। सो व्हाट वी वांट टू क्रिएट अ सोसाइटी, अ पॉजिटिव सोसाइटी, कि हम एक ऐसा अवेयरनेस कैंपेन चलाए, ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए कि लोग उस स्टिग्मा से बहुत दूर भागे, एंड एक्चुअल में अपनी हेल्प के लिए जल्दी से जल्दी, बिकॉज आप जितना जल्दी उस चीज को अटेंड करोगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको तुरंत ही जाके डॉक्टर से भिड़ना है, मिलना है, आप एडवाइस लेनी चालू करो उनसे जिनको पता है। आप जितना जल्दी उसको अटेंड करोगे, आप उतना जल्दी उसको ट्रीट कर दोगे, उसको इम्प्रूव कर लोगे, एंड उसको कुछ परमानेंट या लॉन्ग रन में खुद को हैम्पर करने से बचा लो। ब्यूटीफुल समरी, बहुत ही अच्छे से सब एक्सप्लेन किया है एंड यू हैव कवर्ड एवरीथिंग जो भी हमने डिस्कस किया। एंड द मेन थिंग दैट अगेन यू सेड कि सोसाइटी ड्रिवन भी हो जाता है ये सब, like the same way that a person having fever can take an off because of fever, or they can tell others that I have fever, which is why I am not well. In the same way उनको ये कहते भी आना चाहिए अभी कि I am not well because of some mental health issue and I'm taking an off एब्सोल्युटली। because I'm down.
सो ये भी हमको enable करना है eventually in the future कि so that people can take help immediately when they feel like, and they don't have to feel awful about taking help in that case. एब्सोल्युटली। So finally, any resource or anything which you would recommend someone to read or to see, any movie or any book which you can recommend a person सो who wants to be more educated about this? frankly speaking, with my own experience in life, I have learned one thing. You read a lot of things, you watch a lot of things. बहुत सारी चीज, बहुत सारे मटेरियल दुनिया में है, गूगल पे है और यूट्यूब पे है. You can gather a lot of information, but you have to be aware of what to do with that information and कितनी information सही है, कितनी information गलत है. हम गूगल करके सर्च करके बहुत सारी ऐसे कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं जो शायद गलत हो सकते हैं. सो आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एडवाइस कि आप लो, देखो कितनी भी अच्छी बुक हो, बट दैट बुक आल्सो मे हैव सम लूप होल्स इन इट. तो किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है. इसीलिए मेरे को कोई पूछता है कि क्या रिकमेंडेशन है, तो मैं उनको यूजुअली ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप जाके ये पढ़ो, बिकॉज वो उसको फिर ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं. व्हाट आई वांट देम टू अंडरस्टैंड इज कि यू रीड इट एंड देन अप्लाई इट विथ समवन्स हेल्प, कि किसी की एक्सपर्टीज की हेल्प लो, बिकॉज every individual have a different kind of body, different kind of mind. एंड Hmm. वो जो बुक में लिखा है, इट इज अ जनरल कंसेंसस. वो बुक में जो लिखा है वो रिसर्च इस पॉपुलेशन की यूनिवर्सल जनरल एक एलिमेंट के हिसाब से किया गया है कि अगर मैं 1000 लोगों में करता हूँ तो 900 लोगों में इतना मुझे मिलेगा, बट यू कैन बी इन दैट दोज 100 ऑल्सो. सो जब आप किसी एक्सपर्ट से सेल्फ केयर के हिसाब से आप जब डिस्कशन करते हो, तो जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है आप उसको खुद के ऊपर कैसे अप्लाई करना है वो ज्यादा बेहतर अच्छे से समझ पाओगे. So, thank you so much, Dr. Rohan, for coming onto this podcast, sharing your knowledge about this topic. And I have also learned a lot of new things in the last 1.5 hour, जो काफ़ी valuable है, and which I can apply further in my own practice, and I can advise others also to apply in their life. So, thanks a lot for coming on. Thank you for this opportunity and thank you for listening to me. In this podcast, there's a new episode which is released after every 15 days, one guest episode and one solo episode. So do not forget to like and follow this podcast, rate it on whichever audio platform you are listening to. If you are watching this podcast on YouTube, do not forget to subscribe to my channel Fitful Ears and share this video with your family and friends who you think can benefit from this podcast and the information which is given on this podcast. Thank you.